हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जेईई मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 50 इज। सो जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद द फर्स्ट टर्म 1 and common ratio 3. So this can be written as, let me consider it as equals to n. So n is equals to, we have given 1 plus 3 square so on till 3 to the power 2021. We know how to write the sum of geometric progressions. So that will be equals to n is equals to a, which is 1, r to the power n. So here we have total 2022 terms minus 1 upon r minus 1. Now this, if I take 2 common from the whole power, I will get 3 square to the power 1011 and this will become 9 to the power 1011 minus 1 upon 2. Now 9 again can be written as 10 minus 1. So this will be equals to 10 minus 1 whole power 1011 minus 1 upon 2. Now, if we multiply the whole equation by minus 1, or we can take minus common, so this will become n is equals to minus 1, this will become minus of 1 minus 10 whole power 1011 upon 2. Now, this is 1 minus 10 whole power 1011 can written as, after expanding, this will be equals to, n is equals to minus 1 minus of, this will be 1 minus, this is in the expansion, we will get 10110 plus multiple of 100, multiple of 100 whole divided by 2. If we expand this, we will get 1, which is the first term, and the last term, which is minus 10110, and rest of the terms will be multiple of 100. So this will be, after dividing this will become minus 1, which is minus 2. So minus 2 divided by 2 will be minus 1. This is plus, if we divide this by 2, we will get 5055 plus multiple of 100. Multiple of 50. The multiple of 100 divided by 2 will be multiple of 50. Now this will be equals to, n is equals to 5054 plus multiple of 50. Now we need to find the remainder when dividing this by 50. So if we divide this by 50, this will be simplified, and if we divide this by 50, we will get the remainder 4. So the remainder will be equals to 4. So 4 is the correct answer for this question, which is option 1. Now let's move to the next question and see. Next question is, तो हमें जो question है वो क्या है, let p be the 7th term from the beginning and q be the 7th term from the end in the expansion of this where n belongs to natural number, and we have given 12p is equals to q, then we need to find the value of n. अब हमें p दिया गया जो कि 7th टर्म है स्टार्टिंग से, एंड q जो है वो क्या है हमारा 7th टर्म है एंडिंग से. सो हमें अच्छे से पता है कि कैसे हम स्टार्टिंग से 7th टर्म लिखेंगे और कैसे हम एंडिंग से 7th टर्म लिखेंगे. सो फॉर दैट फर्स्ट वी विल फाइंड p एंड q. सो p will be equals to 7th term, that means r is equals to 6. So this will become nc6. This will become nc6 cube root of 3 whole power n minus 6 and 1 by cube root of 4 whole power 6. This is the p, which is the 7th term from the starting, and also we can write q, which is the 7th term from the end, and the 7th term from the end will be equals to n. For that we have r is equals to n minus 6. So this will become n upon nc n minus 6. This is, we have 1 upon cube root of 4 whole power n minus 6 and
cube root of 3 whole power 6. A relation we have given that 12p is equals to q. So from here we have q upon p is equals to 12. We can put q upon p. We know NC6 is equals to NCn minus 6 because we know NCr is equals to NCn minus r. So this both will be cancelled out, NC6 and NCn minus 6. So here we have q will be equals to, this will become 4 to the power n minus 6 whole divided by 3, and here we have 3 to the power 2 upon, here we have, this will be minus, and also for p we have 3 to the power minus times n minus 6 by 3 and 4 to the power 2. So this will be simplified as 12 to the whole power, this will be equals to 12 to the whole power 6, 12 minus n upon 3, and that is equals to, it is equals to, we have given 12. So as both base has same, we can equate the powers. So this will be equals to 12 minus n upon 3 is equals to 1. This implies n is equals to 9. So we have the value of n for this question is 9. 9 is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो किस तरह का क्वेश्चन है. तो ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन जो कि हमें दिया गया है. द एक्सपेंशन ऑफ दिस हैज 3 consecutive terms with the coefficient in the ratio 1:2:3 and can be written in the form of NCK, NCK plus 1, NCK plus 2. The sum of all possible values of n plus k is. So we have given 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus x to the whole power n. So let's write this. First we will take these two, first and second term. So this will be equals to NCK upon NCK plus 1, and that is equals to 1 by 2 as they are in the ratio 1:2. So from here we can write factorial n upon factorial k factorial n minus k upon, or we can multiply this by k plus 1 factorial n minus k minus 1 factorial upon factorial n. So this will be simplified and here we have 1 by 2. Now this can be k plus 1 multiplied by factorial k. So in the numerator we have k plus 1 and in denominator we have n minus k multiplied by n minus k minus 1 factorial. So here we will get n minus k, that is equals to 1 by 2. This implies we have 2k plus 2. So 2k plus 2 plus k, this will become 3k plus 2, that is equals to n, and this is we have equation 1. Now as it is, we can solve for the rest two relation which we have given, which is NCK plus 1 and NCK plus 2. So here we have NCK plus 1 upon NCK plus 2, that will be equals to 2 by 3. So again we can write it as, if we expand this, factorial n will get simplified and here we will get k plus 2 factorial up multiply by n minus k minus 2 factorial, and here we have k plus 1 factorial multiply by n minus k minus 1 factorial, that is equals to 2 by 3. Now n plus 2 factorial can be written as n plus 2 multiply by n plus 1 factorial. So in the numerator we will get n plus 2 only, and here we have, this can be written as n minus k minus 1 factorial, n minus k minus 1 multiply by n minus k minus 2 factorial. So in the numerator we will get n minus k minus 1, this is equals to 2 by 3. So from here we will get, this is 3n plus 6, that is equals to 2n minus 2k minus 2. So this implies we have, this is 3n, okay, here we have k plus 2, not n plus 2.
this is k plus 2, so this is 3k. So this will become 5k plus 8, that is equals to 2n. 5k plus 8, that is equals to 2n. This is we have equation 2. Now if we simplify both the equation, we will get by 1 and 2, we will have, this is 3k plus 2 whole multiply by 2, that is equals to 5k plus 8. This implies we have 6k minus 5k, so that will be k. So k is equals to, this is 4 and here we have 8. So k is equals to, we have 4. If we put k is equals to 4, so this is n is equals to, we have 8. N is equals to 8. We need to find the value of n plus k. So the value of n plus k for this question will be 8 plus 4, which is 12. Is it correct? Okay. K is equals to 4. So this is 12 plus 2, 14. N is equals to 14, not 8, it is 14. So the value of n plus k is 18. So for this question, option 1 is the correct option. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 in the expansion of this and coefficient of x to the power minus 9 in the expansion of this are equal, then we need to find alpha beta whole square is. So we know how to write the coefficient of x to the power 9. So we will get x to the power 9 in this expansion when we will write the 7th term. So for that we have 11c6, coefficient of x to the power 9 in expansion of alpha x cube plus 1 upon beta x whole power 11. So that will be equals to 11c6 alpha to the power 5 and beta to the power 6. This is when we get x to the power 9. Now as it is coefficient of x to the power minus 9 in the expansion of this, so coefficient of x to the power minus 9 in alpha x minus 1 upon beta x cube. So this will we get when we have r is equals to 5. When we have r is equals to 5, we will get alpha is equals to, x to the power minus 9. So this will be minus times 11c5 alpha to the power 6 and beta to the power 5. Now as it is given in the question that both are equal, so let's just equate this. We will have 11c6 alpha to the power 5 beta to the power 6, that is equals to minus times 11c5 alpha to the power 6 upon beta to the power 5. So from here we have 1 upon beta is equals to minus alpha. This implies alpha beta is equals to minus 1. We have alpha beta is equals to minus 1. We need to find the value of alpha beta whole square. So that means we have alpha beta whole square, that is equals to 1. So this value is equals to 1 and 1 is the correct आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो किस तरह का क्वेश्चन है. सो द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of this where x is greater than 0 is alpha times the corresponding binomial coefficient then the value of this. So we need to find the term independent of x. For that we know that we need to write the journal term. So journal term for this expansion will be equals to TR plus 1, that is equals to NCR. Here N we have 18. So this is 18CR alpha x to the power 18 minus R and minus 1 by 3 root x whole power R. So here we need to find the term which is independent of x. So term will be independent of x when the power of x should be equals to 0. So here we have x to the whole power 18 minus r by 2. That means x is equals to, here we have 18 minus 3r by 2. So
for term to be independent of x, 18 minus 3r by 2, that should be equals to 0. This implies we have r is equals to 18 divided by 18 minus 3r by 2, so that means this will be equals to, also keep 3r by 2. This is 3r by 2, that should be equals to 0. This implies we have r is equals to 12. We have r is equals to 12. That means the term which is independent of x will be 13. So T13 will be equals to 18C12. 18C12 alpha to the power 6 and minus 1. Minus 1 to the power 12 will be plus 1. So this will be 1 by 3 to the power 12, and that is equals to, it is equals to the alpha times corresponding binomial coefficient. So alpha times corresponding binomial coefficient is 18C12. So this will be 18C12. Now both will get cancelled out, and from here we will get alpha to the power 5 is equals to 3 to the power 12. Now if we see the question, we need to find the alpha to the power 15. So this will be equals to 3 to the power 12, 3 are 36. Now we need to take the log with base 9. So if we take both side log with base 9, we will get log alpha to the power 15 base 9, and this can be written as 9 to the power 18. So this will become log base 9, 9 to the power 18, and that is equals to 18. So the value of log alpha to the power 15 base 9 is equals to 18. So for this question, option 2 is the correct option. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है. तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a be the sum of odd terms and b be the sum of even terms in the expansion of this, then we need to find this value. So first of all we will write the expansion of 1 plus x to the whole power n. So a is equals to we have given sum of odd terms. So sum of odd terms in this expansion will be nc0, nc2 plus nc4 and so on. B will be the sum of even terms. So even terms in the expansion is nc1 plus nc3 plus nc5 and so on. So here we can say that 1 plus x whole power n is equals to a plus b, as even terms and odd terms both. So 1 plus x whole power n is equals to a plus b. As it is, if we find the value of 1 minus x to the whole power n, that will be equals to a minus b. Now if we multiply both, we will get 1 minus x into 1 plus x whole power n is equals to a plus b and a minus b. So this will become 1 minus x square whole power n, that is equals to a square minus b square, as a to the power n multiplied by b to the power n is equals to ab whole power n. So the value of 1 minus x square whole power n, that is equals to a square minus b square. So for this question, option 1 is the correct option. तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, let second, third and fourth term in the expansion of this are, we have given 240, 720 and 1080 respectively. Then we need to find the value of a plus x plus n is. So हमें दिया गया है कि सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या होगी, t2, that will be 240 हमें दिया हुआ है, t2 is equals to 240. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा nc1 a to the power n minus 1 a to the power x to the power n minus 1 and a to the power 1, that is equals to 240. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है t3, that is equals to 720. So for this we have nc2 x to the power n minus 2 a to the power 2, this is equals to 720.
और इसी तरह हमें दिया हुआ है T4 जो कि है 1080। सो ये हमारे पास हो जाएगा NC3 x to the power n-3 and a to the power 3, this is equals to 1080। ये हमें दिया हुआ है बाय द क्वेश्चन। नाउ ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें कोफिशिएंट्स जो होंगे वो थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो जाएगा NC3 x की पावर n-3 प्लस n-1, ये हो गया 2n-4 और a की पावर हो गया हमारे पास 4 होल डिवाइडेड बाय और साथ में मल्टीप्लाई में NC1। यहाँ हो गया हमारे पास NC2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2n-6, अच्छा यहाँ से NC2 होल स्क्वायर 2n-4 और ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 240 मल्टीप्लाई बाय 1080 होल डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 720। सो देखिए ये पावर्स यहाँ से कैंसिल आउट हो गई हमारे पास। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास 9 टाइम्स 8, 9 टाइम्स ये हो गया हमारे पास 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये 3 एंड हियर वी हैव 12, ये 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स। तो ये हो गया हमारे पास 1/2। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा n-1, इसको लिखा जाएगा हमारे पास 1/n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/n-3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 1/n-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-2 फैक्टोरियल। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा हमारे पास n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2, ये हो गया n-2 फैक्टोरियल, n-2 मल्टीप्लाई बाय n-3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n-1 n-2 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा और बचेगा n-2 अपॉन n-1। यहाँ पर 4 भी है, ये हो जाएगा 3, ये 2, ये 3। सो ये हो गया हमारे पास 2/3। तो देखिए हमारे पास आया n-2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n-2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय n-1, दिस इज होल इक्वल्स टू 1/2। सो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 4n-8 इट इज़ इक्वल्स टू 3n-3। सो यहाँ से हो गया हमारे पास n इज इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारे पास 5। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट a इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास जो है a की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू रखें 1 में तो ये हो गया हमारे पास n इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो गया 5c1 x की पावर 4 a इज इक्वल्स टू 240 और अगर हम 2 में रखें तो ये हो गया हमारे पास 5c2 x की पावर 3 और a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 720। अब अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें जो है वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी a की, a इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 3, a इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 3 आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस। सो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस एक्स प्लस एन की। सो a प्लस एक्स प्लस एन जो है वो आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो a की वैल्यू, अच्छा हाँ, यहाँ से a की वैल्यू आएगी 3 और x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2।
तो हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस एक्स प्लस एन, जो कि आ जाएगा हमारे पास 10. सो द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 10, और जो 10 है वो है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. सो टू फाइंड द सम ऑफ रैशनल टर्म फर्स्ट वी नीड टू राइट द जर्नल टर्म फॉर दिस एक्सपेंशन. तो इसका जर्नल टर्म जो होगा वो होगा टी आर प्लस 1 NCR which is 10CR root 2 to the power 10 minus R and 3 to the power 1 by 5 whole power R. So this will become R by 5. So this will be equals to 10CR 2 to the power 10 minus R by 2 and 3 to the power R by 5. 3 to the power R by 5. This is the term, this is the general term of this expansion. So we will get the rational term when we will put R is equals to 0 or R is equals to 10. For R is equals to 0 and R is equals to 10. So for rational term R should be equals to 0 or 10. If we put R is equals to 0, then we will get the rational term, or if we put R is equals to 10, then we will get the rational term. So we have, if we put R is equals to 0, so we will get T1 plus, if we put R is equals to 10, we will get T11. So this is the we need to find the T1 plus T11, that will be equals to, if we put T1, that is 10C1 2 to the power 10 by 2, that means 5, 2 to the power 5 multiply by 3 to the power 0 which is 1 plus, if we put R is equals to 10, so this will become 0 and this will become 3 square. So this will be 3 square. 10C10 which is equals to 1 and 10C0 is also equals to 1. So this will be 2 to the power 5 which is 32 plus 9, that will become 41. So sum of rational term in the expansion of this which is equals to 41. 41 is the correct answer for this question. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है. तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट दिस एज द सिंपल फ्रैक्शन. सो फॉर सिंप्लीफाइंग दिस, if I multiply the whole term with factorial 19 and also divide it, this will become, this is 1 upon factorial 19 summation over k is equals to 1 to 19, 19 factorial minus 1 to the power k and 2 to the power k whole divided by factorial k 19 minus k factorial. So if we see it, this will be the 19ck. This will be the expansion of 19ck. So I can write it as 1 upon 19 factorial summation over k is equals to 1 to 19, and this will become 19ck minus 1 to the power k and 2 to the power k. So if I expand this, this will become, this is, as we have k is equals to 1 to 19, we can write the expansion of this. So this will become 1 upon factorial 19, and as we have, this will be start from 1, we need to add and subtract 1. So I write it as 19c0. If you put k is equals to 1, this will, the term I will get which is minus 19c1 2 to the power 1 plus 19c2 2 to the power 2 minus 19c3 2 to the power 3 and so on till 19c19, and if we put 19, this will be in the minus. This term will be in the minus as we have minus 19, and 2 to the power, if we put 19, this will become 2 to the power 19, and
as I have added 19C0 which is 1, I need to subtract 1 also. So this is minus 1. This is the expansion of the whole term, and this will become, this is the expansion of 1 minus 2 to the whole power 10. This is the expansion of 1 minus 2 to the whole power 10. So this will be equals to 1 upon factorial 19. This is 1 minus 2 whole power 10 minus 1. This minus 1 is extra. So this we have big bracket. So this is 1 minus 2 which is minus 1 and it has whole power 10. So 1 minus 2 to the whole power, okay, it is not 10, it is 19. So this is 19. Last term is 19. So this is 1 minus 2 to the power 19. So 1 minus 2 is minus 1 and minus 1 to the odd power which is also minus 1. So this is minus 2 upon factorial 19. So this will be minus 2 upon factorial 19. So for this question option 3 is the correct option. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है. तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है when 4 to the power 87 plus 6 to the power 87 is divided by 25 then the remainder is. तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है कि 4 टू द पावर 87 है और 6 की पावर भी 87 है. अब 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1 और 6 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1, ताकि दोनों जो हैं वो 5 के टर्म्स में आ जाएंगे और जो 5 के स्क्वायर वाली पावर्स जो होंगी वो इजीली क्या होंगी 25 से डिविजिबल होंगी. तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5, 6 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5 और 4 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 5. सो ये हमारे पास बन जाएगा, इफ वी टेक माइनस कॉमन सो दिस कैन बी रिटन एज वी हैव 1 प्लस 5 एंड 1 माइनस 5. सो और इसे हम किसके इक्वल मान लेते हैं, e के इक्वल. सो दिस विल बिकम e इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 होल पावर 87 माइनस ऑफ 1 माइनस 5 होल पावर 87. ये इस तरह से लिखा जा सकता है. दैट 6 को हमने ये लिख दिया और फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको लिखा है 1 माइनस 5. अब जो हमारे पास है ऑड टर्म्स जो होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी. सारी ऑड टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और इवन टर्म्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. तो ये जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ NC1 और इसी तरह से वैल्यूज जो है वो आगे चलती जाएंगी NC1, NC3 एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास जो होगा वो क्या आ जाएंगी, सारी ऑड इवन टर्म्स आ जाएंगी सारी की सारी. NC1 5 प्लस NC3 5 की पावर 3 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक जाएगा, ये हमारे पास क्या है 5 की इसकी NC पावर है हमारे पास 87 तक. सो जो लास्ट टर्म होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 87. सो ये हो गया हमारे पास NC 87 5 टू द पावर 87. तो अब अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करें तो ये जो होगा ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 870 के इक्वल. और साथ में जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5. सो ये आ जाएगा हमारे पास 870 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय आई विच इज़ द इवन इंटीजर्स. आई जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन इंटीजर्स हो जाएंगे. ये जो आई है वो हमारे पास क्या है, इवन इंटीजर्स है. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब ये तो पूरा 25 से डिविजिबल है, इसको अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लास्ट में जो होगा वो क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा. सो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 20 वी विल गेट द रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 20. ये तो पूरा 25 से डिविजिबल है, इसको अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो वो 850 डिवाइड होगा और फिर हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 20. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है. ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में भी पहले आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म एंड फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एक्सपेंशन
इज √6:1. देन द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इज, हमें बिगनिंग से थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है. इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी हमने पहले भी सॉल्व किया है कि बिगनिंग से कुछ टर्म जो है वो हमें दी हुई है और एंडिंग से कुछ टर्म हमें दी हुई है. उसी तरह का ये क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियसली जेईई मेंस में आ चुका है. तो देखिए रेशियो दिया हुआ है फिफ्थ टर्म का फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. हम अच्छे से देख सकते हैं कि हम कैसे फिफ्थ टर्म लिखेंगे. बिगनिंग से फिफ्थ टर्म जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, T5, दैट विल बी इक्वल्स टू NC4. तो इसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा NC4 फोर्थ रूट ऑफ 2 होल पावर n-4 एंड 1/4 रूट ऑफ 3 होल पावर 4. ये हो गई हमारी बिगनिंग से फिफ्थ टर्म. अब एंडिंग से फिफ्थ टर्म देख लेते हैं, उसको हम लिख देते हैं T5 डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू NC n-4 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 रूट ऑफ 3 होल पावर n-4 एंड 4th रूट ऑफ 2 होल पावर 4. ये हो गई हमारी बिगनिंग से फोर्थ टर्म, बिगनिंग से फिफ्थ टर्म और ये एंडिंग से फिफ्थ टर्म. क्या बोला है हमें, इन दोनों का रेशियो दिया है वो क्या है हमारे पास √6:1. सो देखिए ये इसका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास T5/T5 डैश. ये दिया हुआ है हमें √6/1. तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी n-4 होल पावर 1/4. ये n-4/4 और यहाँ पर जो होगा ये 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1. ये हो जाएगी हमारे पास 1. तो ये हो जाएगा हमारे पास n-8/4. ये आएगी हमारे पास T5/T5 डैश दैट इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें √6/1 और यहाँ से देखिए NCR इज इक्वल्स टू NCn-R. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से जो है वो हमारे पास बचेगी 2 की पावर √2 की पावर नहीं 2 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास n-8/2. ये आ जाएगा हमारे पास n-8/4 n-8/4. ऐसे 3 की पावर भी क्या आ जाएगी हमारे पास n-8/4. अब ये हमें दिया है √6/1 के इक्वल. तो ये तो देखिए ये तो हमारा क्या हो रहा है 6. अब अगर इसका हम क्या करना है, इसका रूट निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास √6 की पावर क्या आ जाएगी होल पावर n-8/2 n-8/2 और ये हमारे पास इक्वल है √6 के. अगर हम दोनों की पावर्स इक्वेट करें तो यहाँ से हमारे पास जो n है वो किसके इक्वल आ जाएगा 8 + 2 10 के इक्वल. n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10. हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग. बिगनिंग से थर्ड टर्म. अब n हमारे पास है 10. सो T3 विल बी इक्वल्स टू NC2 फोर्थ रूट ऑफ 2 इज टू होल पावर. इसकी होल पावर क्या आ जाएगी n-4 दैट इज 10 - 4 इज 6 एंड 1/4 रूट ऑफ 3 इसकी होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2. इसकी होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2 10 - 2 इज ये हो जाएगा हमारे पास 8. ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा. तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10 × 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा हमारे पास 8/4 विच इज़ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/2 यानी कि 3 की पावर 1/2. सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कैंसिल आउट. ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 2 × 3 टू द पावर 1/2. तो ये तो आ रहा है हमारे पास, कुछ तो गड़बड़ हुई है. ये हो गया 180√3. 180√3 तो हमारा ऑप्शन में नहीं है. n इज इक्वल्स टू 10 और अगर हम ये फाइंड आउट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, देखिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं फिर से. n इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 10 और हमें फाइंड आउट करनी है थर्ड टर्म. सो वो हो जाएगी हमारे पास T2 और T2 जो होगा वो हमारे पास यही हो जाएगा. अब इसकी पावर अगर हम फाइंड आउट करें तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
1/2 और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास ये, तो ये तो सही था, 10 × 2, 10 × 9 होल डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 2। ओके, तो √2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और इसकी होल पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60√2। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास 60√2, यानी कि कौन 60√3, √2 नहीं √3। तो ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, फर्स्ट वी नीड टू राइट द जर्नल टर्म। तो चलिए सबसे पहले इसकी जर्नल टर्म लिखते हैं, जो होगी हमारे पास tr+1 that is equals to NCR which is 5CR a to the power n minus r 2x cube whole power 5 minus r and minus 1/3x square whole power r। So ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 5CR, और यहाँ पर हमारे पास जो x है वो टोटल आ जाएगा, दिस इज 5CR 2 to the power 5 minus r minus 1/3 to the power r, एंड यहाँ पर हमारे पास है x की पावर 15 minus 3r and here it is x to the power minus 2r, so minus 2r। तो ये हमें फाइंड आउट करना है x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट। तो ये जो पावर है 15 minus 5r, this should be equals to 5. So if we find this, we will get 10 is equals to 5r. This implies r is equals to 2. So the value of r will be equals to 2. So the coefficient of x to the power 5 we will get by solving this. So हमारे पास आ जाएगा t3 that is equals to 5c2 2 to the power 3 multiply by minus 1/3 whole power 2. So this will be equals to 5c2 multiply by 8 multiply by 1/9. So this is equals to 5c2 is 5 multiply by 4 upon 2. This is 10 multiply by 8 whole divided by 9 which is 80 upon 9. So ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स, ऑल पॉजिटिव इवन पावर्स ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हम इसका एक्सपेंशन देखते हैं। अगर हम इसके लिए जर्नल टर्म लिखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, tr+1 that is equals to NCR 2x cube whole power 10 minus r and 3/x whole power r। ये हो गई हमारे पास जर्नल टर्म इसके लिए। अब हमें फाइंड आउट करना है x की पावर, x की इवन टर्म्स। तो हमें x की इवन टर्म्स कब कब मिलेगी, जब हम r इज इक्वल्स टू क्या पुट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम r को 0 से लेके 7 तक पुट करें तो हमें क्या मिलती है, इवन पावर्स मिलेगी ऑफ x। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर r इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो भी हमें x की इवन पावर मिल रही है। अगर हम r इज इक्वल्स टू 7 पुट करें तो ये होता है हमारे पास 3 multiply by 3 6, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 7 विच इज इक्वल्स टू, सो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी x की जो इवन पावर्स आएगी वो क्या आती जाएगी, x की हमें सारी क्या मिलती जाएगी, पॉजिटिव इवन पावर्स। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 10c0 2 की पावर 10, because we need to write only the powers terms of the values of x,
सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर 10 और इसके साथ ही हमारे को जो वैल्यूज़ मिलती जाएंगी वो हमें मिलती जाएगी। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखें फॉर r इज इक्वल्स टू 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 10c1 2 टू द पावर, ये हो जाएगा हमारे पास 9 और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1 प्लस एज इट इज़ ये वैल्यू चलेगी 10c2 2 टू द पावर 8 और 3 टू द पावर 2। कहाँ तक जाएगा ये? फॉर r इज इक्वल्स टू 7 तो ये हो जाएगा हमारे पास 10c7 2 टू द पावर, ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 7 विच इज़ 3 एंड 3 टू द पावर 7। ये आई हमारे पास वैल्यू किसकी? जब हमें क्या मिल रही होंगी? इवन पावर्स ऑफ x मिल रहा होगा। अब अगर हम जो एक्सप्रेशन हमें दिया है इसमें हम x इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दें? 1 पुट करें तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी? 2 + 3 होल पावर 10 और इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास? 10c0 2 टू द पावर 10 प्लस 10c1 2 टू द पावर 9 3 प्लस 10c2 2 टू द पावर 8 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 10c10 2 टू द पावर 0 एंड 3 टू द पावर 10। तो देखिए अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को देखें तो ये किसके इक्वल है? 5 टू द पावर 10। सो इवन पावर्स जो होंगी हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगी? 5 टू द पावर 10 माइनस 5 टू द पावर 10। ये पूरी वैल्यू 5 टू द पावर 10 है, बट फॉर इवन पावर्स हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से जो लास्ट की 3 टर्म्स हैं 10c8 से लेके 10c10 तक वो हमें क्या करनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10c8 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 8 प्लस 10c9 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 9 प्लस 10c10 2 टू द पावर 0 3 टू द पावर 10। ये हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हम पूरे में से 3 टू द पावर 9 कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 10 माइनस 3 टू द पावर 9। अब ये देखिए 10c8 दिस विल बी इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 9 होल डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पर 3 टू द पावर 8 है बट हमने कॉमन क्या लिया है? 3 टू द पावर 9। तो एक 3 से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस 10c9 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10c10 इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 3। सो देखिए अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आता है हमारे पास 3 और ये आएगा हमारे पास 2 तो ये हो गया 60। So this will be equals to 5 to the power 10 minus 3 to the power 9 multiply by 60 plus 20 80 80 plus 3 83। तो अब ये हमारा इस फॉर्म में आ चुका है 5 to the power 10 minus बीटा मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 9। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 83। सो बीटा इज इक्वल्स टू 83 एंड 83 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसी तरह से अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है दैट रिमाइंडर व्हेन 2023 होल पावर 2023 इज डिवाइडेड बाय 35 इज। सो हमें इस पूरी पावर को हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जब हम ये एक्सपेंशन जो होगा इसका उसको हम किससे डिवाइड करें? 35 से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2023 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2023 को हम क्या लिख सकते हैं ताकि ये क्या हो जाए? मल्टीपल ऑफ 35 में आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2030 माइनस 7। सो ये जो होगी हमारे पास वैल्यू ये क्या हो जाएगी? 2023 होल पावर 2023 इट कैन बी रिटन एज 2030 माइनस 7 होल पावर 2023। देखिए 2023 को हम क्या लिख सकते हैं? 2030 माइनस 7 होल पावर दिस। सो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस पूरे को हम लिख सकते हैं 35k के इक्वल एज दिस विल बी डिविजिबल बाय 30। सो ये हो जाएगा हमारे पास 35k माइनस 7 होल पावर 2023। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो ये जो एक्सपेंशन होगा वो किस तरह से होगा? 35k माइनस 7 होल पावर 2023 दिस इज इक्वल्स टू
2023 C0 NC0 x टू द पावर n माइनस r, यानी कि हो जाएगा 35k टू द पावर 2023 एंड देन फिर आएगा हमारे पास इसकी वैल्यू 1, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगी, वो आएगी 2023 और प्लस साइन के साथ अगर हम लिखें तो वो हो जाएगा 2023 C1 35k इसकी होल पावर 2022 और -7 की होल पावर 1। इसी तरह से जो वैल्यूज़ है वो आगे बढ़ती जाएंगी कहाँ तक, 2023 C2023 ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट टर्म 2023 C2023 और यहाँ पर 35 तो कैंसिल आउट हो गया, 35 की पावर 0 आ जाएगी जो कि हमें नहीं लेनी है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास -7 इसकी होल पावर आ जाएगी हमारे पास 2023। अब अगर हम इसे देखें तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से लेके जस्ट बिफोर टर्म्स तक तो सारे जो होंगे वो मल्टीपल ऑफ 35 होंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 35n, इसको क्या लिख सकते हैं हम 35n। और जो लास्ट वाली टर्म है इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा -7 टू द पावर 2023। अब ये तो 35 से डिविजिबल है, तो हमारे पास एट लास्ट क्या बच रहा है -7 टू द पावर 2023। अब -7 टू द पावर 2023 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इवन पावर में अगर हम चेंज करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो पूरा डिविजिबल बाय 35 है, तो ये हो गया हमारे पास -7 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 2022। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं -7 की पावर 2023 को, ये इस तरह से लिखी जा सकती है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम 7 स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर एंड इसकी होल पावर 1011, ये चेंज हो गया। अब ये देखिए 7 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 49, 7 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 49, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं 50 - 1, तो ये जो वैल्यू है -7 मल्टीप्लाई बाय 49 टू द पावर 1011, दिस कैन बी रिटन एज -7 मल्टीप्लाई बाय 50 - 1, इसको हमने लिखा 50 - 1 होल पावर 1011। ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -7 मल्टीप्लाई बाय 50 - 1 होल पावर 1011। अब अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो ये फिर से एक्सपेंड हो जाएगा हमारे पास, और जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, देखिए अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो ये आता है हमारे पास -7। अब इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा NCR 1011 C0 इसकी पावर 1011 50 की पावर 1011 माइनस फिर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1011 C1 50 की पावर 1010 फिर प्लस, और ये इसी तरह से वैल्यू कहाँ तक जाएगी 1011 C1011 तक, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लास्ट जब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब ये जो वैल्यूज़ है ये क्या बन रही है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 आ रही है, ये सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5, और लास्ट में हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा -1, ये लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा -1 क्योंकि ऑड टर्म्स है, तो ये वैल्यू जो आई वो हमारे पास आई -7 5 लैम्डा -1, तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस का 35 लैम्डा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास +7 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास +7। अब इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू आएगी ये तो वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू तो हमारी 35 से डिविजिबल है, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा 7 बचेगा। तो जब हम इस पूरी टर्म को 35 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास, रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो लिखा हुआ है इसे हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास समेशन ओवर k इज इक्वल्स टू 0 to 6 51 - k C3। अब k की वैल्यू हमें रखनी है 0 से लेके 6 तक। तो देखिए अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 0 पुट करते ही आ जाएगा हमारे पास 51 C3 प्लस ये हो जाएगा 50 C3
प्लस फिर आ जाएगा हमारे पास 49 C3 प्लस 48 C3 प्लस 47 C3 प्लस 46 C3 प्लस 45 C3। इस तरह से ही हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स आ गई? 7 टर्म्स। अब इसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 C3 प्लस 46 C3 प्लस 47 C3 प्लस 48 C3 प्लस 49 C3 प्लस 49 C3 फिर आ जाएगा हमारे पास 50 C3 और इसी तरह से ही हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 50 C3 और ये लास्ट में आ जाएगा 51 C3। अब देखिए हमको ये पता है कि NCR और NCR माइनस 1 जो होगा वो किसके इक्वल होता है? N+1 CR के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू है वो क्या पुट करेंगे? NCR प्लस NCR माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास NCR प्लस NCR माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू N+1 CR। तो उसको अप्लाई करने के लिए अगर मैं इस पूरी टर्म में क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, 45 C4 को ऐड किया और 45 C4 को ही मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखिए NCR NC N माइनस R किसके इक्वल आ जाएगा? N+1 CR के इक्वल। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 46 CR विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस ये हो गया 46 C3 एंड सो ऑन, ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब एज इट इज फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 47 C4 और ये आ जाएगा हमारे पास फिर से 47 C4 प्लस 48 C4 और इसी तरह से ये वैल्यूज क्या होंगी फिर से हमारे पास आगे बढ़ती जाएगी। अब लास्ट में हमारे पास जो होगा वो क्या आ जाएगा 51 C3 और 51 C4। तो ये क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 51 C4 प्लस 51 C3 माइनस 45 C4। सो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? ये हो जाएगा हमारे पास 52 C4, ये आ जाएगा हमारे पास 52 C4 माइनस 45 C4 माइनस 45 C4। सो अगर हम अच्छे से अपने ऑप्शंस चेक करें तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरह से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे हैं अलग अलग वैरायटी के जो कि बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जेईई मेंस में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी वीडियोज़ के साथ आपको कुछ लिंक दिया जाएगा जिसके साथ में आपको PDF मिलेगी क्वेश्चंस की, जो कि जेईई मेंस के पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको वहाँ पे उनको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा चांस मिलेगा। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, आगे के और टॉपिक्स पर आपको इसी तरह के वीडियोस प्रोवाइड होते रहेंगे। थैंक यू।